Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Guru. Let's compete. Today, I will discuss about National Curriculum Framework NCF 2023. In this video, I will discuss 16 MCQs. It is marathon MCQ, 60 MCQs, and also I will discuss the different features of NCF or different assessment pattern in different stages. Also, I will discuss about the holistic report card. So this part definitely would be interesting one. It is very useful for CTET, Central Teachers Eligibility Test, UGC NET, Principal Vice Principal Exam, State Teachers Eligibility Test. So definitely this session would be interesting one, and you can get many informations. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So please listen the video up to the end, and definitely the question pattern and the explanation definitely would be different one, and uh, you can get many useful informations. So follow my Facebook page, same Asit Governmental Guru. If you follow my Facebook page, you can get notification. It means you can get my video links systematically, and my WhatsApp number is there, 8327782034. And if any queries there, you contact with me and clear your doubt. Now I am going to discuss MCQs with explanation related to the National Curriculum Framework 2023. You see the question number 1. What is the main focus of NCF 2023? It is 4 options given: rote learning, holistic and competency based education, only textbook based education, memorization of facts. Option B is the correct answer, holistic and competency based education. Right? Holistic education, cover everything. It is life skills, academics, then other curricular and extracurricular activities like sports, music, suppose drama, okay, everything, and other life skills. Also, it means social emotional skills, okay, physical growth, emotional growth, psychological growth. So it covers everything. It means the in different angle we can assess the child. Okay, so option B is the correct answer. Question number 2, NCF 2023 is aligned with which national policy? It is National Knowledge Policy 2010, National Education Policy 2020, Sarva Shiksha Abhiyan, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. So option B is the correct answer. It is National Education Policy 2020. Right? So question number 3, under NCF 2023, which of the following is a key stage in schooling? 4 options: primary, secondary, higher secondary, foundational, preparatory, middle, secondary, nursery, kindergarten, primary, higher secondary, pre-primary, elementary, middle, senior. Option B is the correct answer. 4 stages are there. Okay, key stages. Foundational stage, it is 3 to 8 years. 3 to 8 years, it is up to standard 2. Up to Bal Batika to standard 2. You remember. Bal Batika to standard 2. Preparatory, it is age group 8 to 11, and it is 3 4 5, standard 3 to 5, right? Similarly, middle school stage, it is 11 to 14, or it is 6 to 8 standard, right? And secondary, it is 14 to 18, and it covers standard 9 to 12. So 4 stages: foundational, preparatory, middle, and secondary. So option B is the correct answer. Clear? Question number 4. According to NCF 2023, foundational stage includes which age group? Foundational stage age group is 3 to 8 years. It is Bal Batika to up to standard 2. Okay.
It is 5 years actually. Balvatika 3 years. Okay, Balvatika 3 years plus standard 1 and standard 2, right? So it is 3 to 8 years. So at the age of 3, the child take admission in the school. Okay, जो FLN है, फाउंडेशनल न्यूमरसी एंड foundational literacy and numeracy skills also the child acquire in Balvatika stage. So it is Balvatika to standard 2, right? Option B is the correct answer. Question number 5. NCF 2023 recommends the medium of instruction in early years should be in. Early years, the medium of instruction should be in regional and home language or mother tongue. Option B is the correct answer. अभी आपको दिया है कि जो होम लैंग्वेज है इट इज अप टू स्टैंडर्ड 5. Up to standard 5, it means the child must use home language. It is compulsory, only home language. Then then after that, okay, standard 6 to 8 also maximum. Standard 6 to 8 also maximum home language. The teachers, they can teach in home language or in mother tongue. It is compulsory up to standard 5 actually only in home language or mother tongue. Okay, then standard 6 to 8, it means maximum time the teachers, they can teach in home language or mother tongue, because now you know 3 language formula emphasized in NEP and NCF. So it is option B is the correct answer. For that reason, in early years, emphasize on regional and home language or mother tongue. Okay. Question number 6. As per the NCF 2023, assessment should focus on memorization skills, rigid grading system, conceptual understanding and application, standardized multiple choice test only. Option C is the correct answer. Conceptual understanding and application. जो भी असेसमेंट होगा, चाहे फॉर्मेटिव, समेटिव, ओके, और कोई प्रिपेरेटरी असेसमेंट, सो सभी असेसमेंट में कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्चुअली जो क्वेश्चन होगा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, इट इज बिकॉज द चाइल्ड मस्ट प्रॉपरली अंडरस्टैंड, इफेक्टिवली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, okay, and also his or her knowledge must be practically based. Okay, his or her mind should be pragmatic one, practical one. So option C is the correct answer. Conceptual understanding and application. Question number 7. Which new curricular area has been emphasized in NCF 2023? Coding and computational thinking, traditional rote learning, only theoretical knowledge, more exams and frequent testing. Option A, it is coding and computational thinking. ये न्यू एरिया है जो एम्फसाइज किया गया है NCF 2023 में. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट काइंड ऑफ असेसमेंट डज NCF 2023 प्रमोट? ओके, किस तरीके का असेसमेंट को NCF 2023 प्रमोट किया है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, ओनली एनुअल एग्जाम्स, ओनली बोर्ड एग्जामिनेशंस, ओनली इंटरनल असेसमेंट्स. इट इज सेम थिंग, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, क्योंकि अभी आप देखिए पीरियोडिक रिटन टेस्ट है और उसके बाद जो एंड में एक सबमिटिव असेसमेंट होता है. तो जो पीरियोडिक टेस्ट होता है उसमें ऑनगोइंग फीडबैक होता है, ओके, वो कंटिन्यूअस होता है, ऑनगोइंग फीडबैक होता है. द चाइल्ड एक्चुअली रियलाइज करता है उसका क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, और बाकी समेटिव असेसमेंट के बाद हम कंप्लीट अचीवमेंट को मेजर करते हैं, ठीक है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. अकॉर्डिंग टू NCF 2023, वोकेशनल एजुकेशन विल बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम व्हिच ग्रेड? सो आप NEP में भी देखा होगा, वोकेशनल एजुकेशन विल बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्रेड 6. इसीलिए अभी बैगलेस डेज चल रहा है. जो मिडिल स्कूल एज है 6 to 8, अभी बैगलेस डेज, ठीक है, बैगलेस डेज के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया गया है. इसमें चाहे कारपेंट्री हो, चाहे आर्ट हो, ठीक है, सो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, जो खुद कुछ लोकल ट्रेनर्स है वो आएंगे और बच्चों को सिखाएंगे.
तो बच्चे खुद कुछ मटेरियल्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे बम्बूज में, कुछ वुड में, जैसे वो खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो यही मैं बताया जो कारपेंट्री है कि यानी आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसी के ऊपर एम्फासाइज दिया जाएगा। उसमें बच्चों को टेन डेज 10 डेज बैगलेस डेज रहेगा। तो ये मिडिल स्कूल स्टेज में स्टैंडर्ड 6 to 8 रहेगा। तो ये वोकेशनल एजुकेशन का मतलब है जो इंट्रोड्यूस होगा ग्रेड 6 में, वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस होगा। चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे कोडिंग हो, चाहे डाटा एंट्री हो, कोई भी एक आपको वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को देना है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 10, the recommended student teacher ratio for the foundational stage. Again, foundational stage, it is 3 to 8 years होता है। ज्यादातर प्ले बेस्ड लर्निंग होता है इसी टाइम में। तो रेशियो जो है 25:1, 25 स्टूडेंट्स ओके पर 1 टीचर। ओके, 25:1, कंफ्यूजन नहीं होना है, राइट। ये एनसीएफ 2023 एम्फासाइज किया है, राइट। चलो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 इज डेवलप्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? सीबीएसई, एनसीईआरटी, एआईसीटी, यूजीसी? एनसीईआरटी गाइडेंस में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो एनसीएफ 2023 डेवलप हुआ है अंडर द गाइडेंस ऑफ एनसीईआरटी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, as per NCF 2023 the secondary stage consist of which grade? सेकेंडरी स्टेज में 9 to 12। ओके, सेकेंडरी स्टेज 9 to 12, उसका जो एज ग्रुप है वो 14 to 18 ईयर्स, 14 to 18 ईयर्स। ओके, तो सेकेंडरी स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी स्टेज ज्यादातर इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग के ऊपर, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग के ऊपर एम्फसाइज किया है। सो जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग है। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स आर इट मींस इंटरकनेक्टेड अमंग ईच अदर। ओके, तो मल्टी डिसिप्लिनरी एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच, द स्टूडेंट्स दे कैन चॉइस द सब्जेक्ट। यानी कोई सपोज आपका 11-12 में आप ऐसा नहीं है कि सपोज आप यही सब्जेक्ट ही चूज करोगे, तो फ्लेक्सिबल अप्रोच रहेगा। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थॉट प्रोवोकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, हाइपोथेटिकल स्किल्स, ये सब ग्रेड 9 to 12 में आएगा। जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये सब 9 to 12 जो सेकेंडरी स्टेज में आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द फोकस ऑफ एनसीएफ 2023 इज टू मेक एजुकेशन stressful and exam oriented, skill based and experiential, theory heavy with limited application, dependent only on textbooks. It is skill based and experiential learning. Experiential learning, project based. Okay, project, assignment, debate, seminar, quiz और hands on activities, वो आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, इसके ऊपर वो लर्न करेंगे लोकल ट्रेनर से। तो ये स्किल बेस एंड एक्सपीरियंशियल, तो क्योंकि स्किल बेस आ गया, वोकेशनल ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस होगा स्टैंडर्ड 6 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज एनसीएफ 2023 से अबाउट बोर्ड एग्जाम्स? They should be eliminated, they should be held multiple times a year, they should be harder and more competitive, they should focus only on rote learning. Option B, they should be held multiple times a year. अब ये ऑप्शन एक ऑप्शन दिया है सीबीएसई ने, क्या मल्टीपल एग्जाम हो सकता है बेसिकली बोर्ड एग्जाम्स, तो अभी ऑप्शन मांगा है। तो जो एनसीए पे एम्फासाइज किया है, तो वो बोर्ड एग्जाम होगा, मल्टीपल टाइम्स होगा। अभी जैसे एक बार होता है, थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, थोड़ा बच्चों के लिए बर्डन है, बहुत कुंबरसम है। तो इसको थोड़ा एलिमिनेट करने के लिए, जैसे एग्जामिनेशन एक एक्सपीरियंस होगा, एग्जामिनेशन एक स्ट्रेस ओरिएंटेड नहीं होगा, एग्जामिनेशन एक बर्डन ओरिएंटेड नहीं होगा, एग्जामिनेशन एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। तो मल्टीपल टाइम्स एक्चुअली बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करने के लिए एनसीएफ एम्फासाइज कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज एनसीएफ 2023 अप्रोच language learning? One language policy, emphasis on the 3 language formula, English only education, no focus on languages. Option B, emphasis on the 3 language formula. 3 language means एक आपका मदर टंग हो गया, ठीक है, और
सेकेंड आ गया सपोज आपका एक इंग्लिश आ गया और एक हिंदी आ जाएगा, ठीक है। तो इसे 3 लैंग्वेज फार्मूला के ऊपर एम्फासाइज किया है एनसीएफ, भाई एनईपी एम्फासाइज किया है। तो एनईपी एनसीएफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो गाइडलाइंस है, वो इतना डिफरेंस नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 16. Which of the following subjects is integrated into the curriculum as per NCF 2023? Which of the following subjects is integrated into the curriculum? Artificial intelligence and data science, only traditional subjects, only science and mathematics, none of the above. Option A, artificial intelligence and data science. Okay, just integrated into the curriculum. So, right option A is the correct answer. Question number 17. As per NCF 2023, what should be the nature of textbooks? What should be the nature of textbooks? Information heavy with complex language, light, engaging and aligned with real life applications. The same for all students nationwide, available only in English. इसमें जो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लाइट, एंगेजिंग एंड अलाइंड विथ रियल लाइफ एप्लीकेशंस। अभी जो टेक्स्ट बुक का नेचर होगा वो रियल लाइफ एप्लीकेशंस, क्योंकि अभी जैसे हम आर्ट इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड अमंग ईच अदर। सपोज जैसे सस्टेनेबिलिटी है, उसको हम बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये तीनों के बीच कनेक्टेड होने से क्या है, द चाइल्ड कंप्लीट नॉलेज इंफॉर्मेशन मिलेगा कि इट मीन्स हाउ कैन आवर एनवायरमेंट वुड बी सस्टेनेबल वन। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे दिया, जैसे आप साइंस सब्जेक्ट को स्पोर्ट्स के साथ इंटीग्रेटेड कीजिए, तो कौन सा गेम में जैसे जो फोर्स होता है, वो आप जब साइंस कॉन्सेप्ट को आप टीचर्स एक्चुअली व्हेन दे टीच, तो वो कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के साथ लिंक करेंगे, तो पिक्चर बेस्ड लर्निंग होगा। जैसे आर्ट इंटीग्रेटेड कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, पिक्चर बेस्ड होने से क्या है, वो आई कैचिंग होगा। तो वैसा ही जो अभी जो बुक्स डेवलप होगा वो रियल लाइफ एप्लीकेशंस रिलेटेड होगा, ज्यादा बच्चे एंगेज रहेंगे। ओके, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. हाउ डज एनसीएफ 2023 एड्रेस early childhood care and education, ECCE? It is not included in the curriculum. It emphasizes play based and activity based learning. It only includes formal education. It starts from age 6. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर एम्फासाइज है, वो प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आप दोनों स्टेज को ले जाइए, फाउंडेशन एंड प्रिपेरेटरी। फाउंडेशन 3 to 8 years है, अप टू स्टैंडर्ड 2 है, देन स्टैंडर्ड 3, 4, 5 वो प्रिपेरेटरी स्टेज है। तो जो फाउंडेशन स्टेज है वो प्ले बेस के ऊपर ज्यादा एम्फासाइज किया जाएगा, प्ले बेस्ड लर्निंग। और जो प्रिपेरेटरी स्टेज आएगा स्टैंडर्ड 3, 4, 5, उसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट रोल डज टेक्नोलॉजी प्ले इन एनसीएफ 2023? No role at all, limited to ICT classes, integration of digital tools and online resources in learning, replacement of teachers with online learning. तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टूल्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेस इन लर्निंग। तो डिजिटल टूल्स मीन्स अभी जैसे आप बच्चे कुछ लर्न करेंगे जैसे बाय यूजिंग, इट मीन्स डिजिटल टूल्स। सपोज वो कुछ उनको ऑनलाइन रिसोर्सेस मटेरियल दे दिया जाएगा, जैसे उनको टैबलेट प्रोवाइड किया जाएगा, तो टैबलेट में उनका असेसमेंट होगा, एग्जामिनेशन फेस करेंगे, उनको कुछ मटेरियल दिया जाएगा, ठीक है, स्टडी मटेरियल, वो लर्न करेंगे, ठीक है, और वो कुछ गेम्स में इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये सब इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टूल्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज इन लर्निंग को एम्फासाइज किया गया है, टेक्नोलॉजी प्ले इन एनसीएफ। Option C is the correct answer. Question number 20. Which stage of the NCF 2023 framework includes hands-on and project-based learning? तो hands-on learning and project-based learning almost all the stages में किया गया है, फाउंडेशनल, प्रिपेरेटरी, मिडिल स्टेज में, ज्यादातर मिडिल स्टेज में, मगर हैंड्स-ऑन लर्निंग एंड प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग वो सभी स्टेज में एम्फासाइज किया गया है। जैसे हैंड्स-ऑन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लोकल ट्रेनर का हेल्प लेंगे, जैसे बच्चों को
आर्ट एंड क्राफ्ट की, कारपेंट्री की, हैंडीक्राफ्ट, इसके ऊपर उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगा। जो उसमें क्या होगा, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो लॉजिकल पार्ट है, वो धीरे धीरे डेवलप करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये धीरे धीरे डेवलप करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, सपोज बच्चों का जो इनोवेटिव और जो क्रिएटिव स्किल से डेवलप करेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एवरी स्टेज में है, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल, राइट। क्वेश्चन नंबर 21, एनसीएफ 2023 recommends experiential learning through, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्रू, इसमें रोट मेमोराइजेशन, मोर होमवर्क एंड रिटन असाइनमेंट्स, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, फील्ड प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स, रिपीटिंग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस। ऑप्शन सी, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो ये हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, फील्ड प्रोजेक्ट, द स्टूडेंट्स एक्चुअली दे गो टू डिफरेंट प्लेसेस, जैसे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, दे गो टू द कल्चर एंड हेरिटेज साइट, दे गो टू द रिवर बेड। ओके, फील्ड प्रोजेक्ट्स, तो वो विजिट करेंगे और वहां पर वो नेचर के साथ वो लर्न करेंगे। ठीक है, तो उनका धीरे धीरे प्रैक्टिकल, जो प्रैग्मेटिक नॉलेज बढ़ता जाएगा। ठीक है, इंटर्नशिप वही प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है, इसलिए तो वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया स्टैंडर्ड 6 से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द role of arts and sports in NCF 2023? It is optional and extracurricular only, integrated into the curriculum as essential components only for students who excel in them, completely removed from academics. Is option B is the correct answer. Integrated into the curriculum as essential components. जैसे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग मैं बता चुका हूं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप, when the teachers actually they involve in teaching learning transaction, so picture base में actually they try to clear the concept through picture base. And similarly sports also, different type of sports, it means events are there, it can connect with some scientific facts. When you when the teachers actually discuss about the particular content of science, they can integrate with particular sports. So then the session would be interesting one. The students can get practical knowledge. The students actually more and more they engage themselves, easily they grasp the knowledge. So option B is the correct answer. Question number 23, which of the following is a key feature of NCF 2023? Flexibility in subject choices, one size fits all curriculum, focus only on science and mathematics, no scope for interdisciplinary learning. Flexibility in subject choices. अब देखिए, सब्जेक्ट चॉइस एक्चुअली इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट्स। अभी ये नहीं उनके ऊपर वो इट मीन्स असाइन नहीं किया जाएगा कि यही सब्जेक्ट आपको लेना है, उनका चॉइस है, वो ले सकते हैं। अभी जैसे 11-12 स्टैंडर्ड 11 में वो कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स के साथ हिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिक्स के साथ अकाउंटेंसी ले सकते हैं, ओके, फाइन आर्ट ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं। तो बेसिकली स्टैंडर्ड 10 में देखिए एक स्किल सब्जेक्ट है, चाहे फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर हो, योगा की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई भी ले सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी, वो जो सब्जेक्ट वो चॉइस होगा वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2023, which of the following best describes the approach to students learning? Which of the following best describes the approach to students learning? Learner centered and inquiry based, teacher centered with passive learning, only theoretical knowledge without application, strict adherence to outdated teaching methods. It is learner centered. Option A is the correct answer, learner centered and inquiry based, right? So question number 24, option A is the correct answer. Question number 25, which of the following is not emphasized in NCF 2020? Is not emphasized in NCF 2023? Foundational literacy and numeracy, FLN, rote memorization, competency based education, multidisciplinary learning, rote memorization, इसको एम्फासाइज नहीं किया गया है। ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फाउंडेशन स्टेज में, ओके, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, ये सब एम्फासाइज किया गया है। तो ऑप्शन बी,
रोट मेमोराइजेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया है एनसीएफ में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरसी program in NCF 2023 aims to ensure basic skills by which grade? Grade 1, grade 2, grade 3 and grade 5। एक्चुअली जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरसी है, फाउंडेशनल लिटरेसी बेसिक रीडिंग, देखिए बेसिक इसमें आ जाएगा, बेसिक रीडिंग स्किल्स आ जाएगा, बेसिक राइटिंग स्किल्स आ जाएगा, ठीक है, और बेसिक कंप्यूटेशनल स्किल्स आ जाएगा। ओके इसके ऊपर एम्फासाइज किया जाएगा फाउंडेशन स्टेज और स्टैंडर्ड 3, फाउंडेशन स्टेज अप टू स्टैंडर्ड 2 है, प्रिपेरेटरी में स्टैंडर्ड 3। तो बाय ग्रेड 3 तो जो बेसिक रीडिंग है, बेसिक राइटिंग है, बेसिक वोकैबुलरी कॉन्सेप्ट है, कि कोई बेसिक कंप्यूटेशनल एंड न्यूमेरिकल स्किल है, बच्चे लर्न करेगा, वो अप टू ग्रेड 3 में वो बेसिक चीज वो लर्न कर लेगा, ठीक है, बाय ग्रेड 3। ओके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द रिकमेंडेड अप्रोच टू असेसमेंट इन द प्रिपेरेटरी स्टेज ग्रेड 3 to 5 अंडर एनसीएफ 2023? क्या असेसमेंट अप्रोच रहेगा? ओनली रिटन एग्जाम्स, नो असेसमेंट एट ऑल, फॉर्मेटिव, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड होलिस्टिक असेसमेंट्स, स्ट्रिक्ट ग्रेडिंग एंड रैंकिंग? तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 27 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 27 में आप ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा, फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव क्या है? जो पीरियोडिक रिटन टेस्ट होता है, पीरियोडिकली जो रिटन टेस्ट होगा उसमें बच्चों को फीडबैक मिलेगा, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेटिव मीन्स असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये कंटिन्यूअस असेसमेंट है, बच्चों को फीडबैक मिलेगा, बच्चा वो चाइल्ड एक्चुअली उसका स्ट्रेंथ वीकनेस को रीड करेगा। ओके वो इट मीन्स पर्सनल स्ट्रेंथ और पर्सनल वीकनेस को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस होगा, होलिस्टिक असेसमेंट, जो नॉट ओनली एकेडमिक्स, वो करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, चाहे लाइफ स्किल्स, चाहे अदर जो है लाइफ स्किल्स में, जैसे आपका चाहे फिजिकल, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, ये सब स्किल आ जाएगा, ठीक है। और उसमें पीयर असेसमेंट होगा, टीचर असेसमेंट होगा और पेरेंट का असेसमेंट रहेगा। तो ये सब कॉम्पिटेंट एंड होलिस्टिक असेसमेंट, डिफरेंट एंगल में चाइल्ड को असेस किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 28, क्वेश्चन नंबर 28, as per NCF 2023, which of the following statement is true? Students must memorize facts for exams. Education should promote creativity, critical thinking and problem solving. Only marks in board exams matter for success. Early childhood education is not important. Option B, education should promote creativity, critical thinking and problem solving. तो स्किल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, बैकलेस डेज एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसमें ज्यादातर आप सेकेंडरी स्टेज में देखेंगे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थॉट प्रोवोकिंग के ऊपर एम्फासाइज किया गया, ठीक है। तो जो अभी जो बुक्स एक्चुअली डेवलप होगा वो बेसिकली इंगेज बेस्ड लर्निंग होगा। एक ज्यादातर जो है बेसिकली रियल लाइफ सिचुएशंस रिलेटेड बुक्स डेवलप किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एजुकेशन शुड प्रमोट क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 29, as per NCF 2023, students should be given flexibility in choosing subjects based on interest, studying only science and math, following a single standardized curriculum, learning only through textbooks. ऑप्शन ए, चूजिंग सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के हिसाब से सब आप स्किल सब्जेक्ट रखेंगे 9-10 में, चाहे आप आईटी, योगा, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर। सिमिलरली स्टैंडर्ड 11 में आप चॉइस पहले था जैसे साइंस की, ह्यूमैनिटीज की, कॉमर्स, तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट था। अभी नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो। फिजिक्स के साथ फाइन आर्ट, अकाउंटेंसी ले सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ले सकते हो। तो कोई
ऐसा बाउंड्री नहीं है कि फिक्स नहीं है कि यही सब्जेक्ट आपको लेना है. तो इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड चूजिंग सब्जेक्ट. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Question number 30. How does NCF 2023 address students with different learning abilities? One size fits all approach, differentiated instruction and inclusive education, no consideration for different learning needs, focus only on academically high achieving students. So option B, differentiated instruction and inclusive education. Inclusive education जैसे डिसेबल चाइल्ड की स्लो लर्नर, सपोर्टिव लर्नर्स, they can sit with the normal students, they cannot be separated, there is no discrimination between normal student and disabled student कि normal student and slow learner student. So उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ऑल सिट टुगेदर एंड लर्न. ठीक है. और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन रहेगा, जैसे एक ही क्लास में सब बैठेंगे, वही में रहेगा नॉर्मल स्टूडेंट, डिसेबल स्टूडेंट, स्लो लर्नर्स एंड सपोर्टिव लर्नर्स. ओके, तो सब स्टूडेंट्स रहेंगे. डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन रहेगा उनको ग्रूमिंग करने के लिए. ठीक है. डिसेबल स्टूडेंट्स को डिफरेंट इंस्ट्रक्शन रहेगा, स्लो लर्नर्स को डिफरेंट इंस्ट्रक्शन रहेगा, जैसे एज यूजुअल जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स है उनके लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शन रहेगा. मगर इंक्लूसिव एजुकेशन, दे सिट टुगेदर, दे डू नॉट सेपरेट, दे डू नॉट सेट अपार्ट. ठीक है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 31 को चलेंगे. Which type of assessment aims to provide ongoing feedback and support better student learning and teaching practices? Assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning, summative assessment. ये actually assessment for learning. ठीक है. ongoing assessment, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इसमें क्या है, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, जो फॉर्मेटिव पीरियोडिक रिटेन टेस्ट होता है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि कंटिन्यूअसली चाइल्ड को असेस किया जाएगा, उसको फीडबैक दिया जाएगा, तो वो उसका स्ट्रेंथ वीकनेस को डिटेक्ट करेगा. ठीक है. वो सेल्फ रियलाइज करेगा कि किस एरिया में वो वीक है. ठीक है. तो पीरियोडिक रिटेन जो ऑनगोइंग प्रोसेस, जैसे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन यूनिट वन असेसमेंट इज देयर, लाइक दिस. ठीक है. तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जैसे पीरियोडिक रिटेन टेस्ट, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऊपर एम्फसाइज किया गया. मैं और बता देता हूं. असेसमेंट आज लर्निंग एक है. असेसमेंट आज लर्निंग क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, द चाइल्ड एक्चुअली सेल्फ रिफ्लेक्शन, उसका जो सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो सेल्फ रिफ्लेक्ट, एक्चुअली वो देखेगा कि क्या मेरा लेवल कहां पर है. ओके. जो वो खुद को एक्चुअली the child here she think about himself or herself, okay, and detect the learning level, right. तो वो है असेसमेंट आज लर्निंग. सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, ये सब रह जाएगा आज लर्निंग में. ओके. द चाइल्ड खुद को सोचेगा, द चाइल्ड खुद को एक्चुअली मेजर करेगा, उसका अचीवमेंट को मेजर करेगा. द चाइल्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ मेजर हिज और हर अचीवमेंट थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन, थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन. ओके. और एक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्या है, जो कंप्लीट अचीवमेंट, जैसे आपका टर्म एंड में जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है वो समेटिव असेसमेंट, ये इसको बोलेंगे समेटिव, ऐसे बोले समेटिव असेसमेंट. तो एक कंप्लीट अचीवमेंट के ऊपर देखेंगे, पूरा ऑल सभी यूनिट्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो एग्जाम देगा, एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होगा, उसमें एक्चुअली सेल्फ असेसमेंट, उसका पूरा अचीवमेंट को देखा जाएगा. ओके. तो ऑफ लर्निंग एट द एंड, और फॉर लर्निंग ऑनगोइंग, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसे पीरियोडिक रिटन टेस्ट. और आज लर्निंग सेल्फ रिफ्लेक्शन, द चाइल्ड खुद को एक्चुअली रियलाइज करेगा. ओके. खुद का जो स्ट्रेंथ वीकनेस को डिटेक्ट करेगा. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहां पर जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट आर द थ्री अप्रोचेस, योर ऑप्शन गिवन, व्हाट आर द थ्री अप्रोचेस टू असेसमेंट्स मेंशन्ड इन एनसीएफ 2023. थ्री अप्रोचेस में बताया, आज इट मींस ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड आज लर्निंग. तो उसमें देख ली, बहुत इजी है. So option C is the correct answer. Assessment आज learning,
असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अभी मैं डिस्कस किया। तो ये थ्री अप्रोच को एम्फासाइज किया गया है एनसीएफ में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 33 को चलेंगे। राइट, व्हाट इज द की चैलेंज ऑफ द करेंट असेसमेंट सिस्टम? अभी क्या जो करेंट असेसमेंट सिस्टम चल रहा है उसमें क्या की चैलेंज है? अभी जो करेंट असेसमेंट चल रहा है, असेसमेंट इज टू फोकस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, assessment is too diverse and lacks standardization, assessment is often mechanical and promotes rote learning, assessment provides meaningful feedback to students। अभी जो करेंट असेसमेंट है यहां पर जो देखिए मैं एनसर्कल कर दिया, करेंट असेसमेंट जो है इज ऑफन मैकेनिकल एंड प्रमोट्स रोट लर्निंग। अभी भी वो हम रोट लर्निंग कुछ ऐसे रिमेंबर कर देते हैं, कुछ हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, हमारा कंसेप्ट के ऊपर कमांडिंग नहीं है बच्चों का। ओके, वो जैसे तैसे वो क्या करते हैं, रिमेंबर कर देते हैं। ठीक है, एक हाफ ईयरली एग्जाम है और टॉर्मेंट जो हमारा बेसिकली एनुअल एग्जामिनेशन हम कंडक्ट कर देते हैं, पीरियोडिक रिटन टेस्ट होता है, उसमें बेसिकली वही बच्चे थोड़ा रिमेंबर करके, चाहे वो बुक के ऊपर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बुक में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिमेंबर कर लेते हैं, उसमें कोई कॉन्सेप्ट कोई प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज उनका ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो वही मेन वीकनेस वही है, असेसमेंट इज ऑफन मैकेनिकल एंड प्रमोट्स रोट लर्निंग। अभी जो करंट असेसमेंट सिस्टम है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2023, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन? प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन to create competition among students, to certify students learning, to continuously revise teaching learning processes for better learning and development, to assign grades and levels to students। actually option C is the correct answer। मेन प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसमेंट, जो असेसमेंट हो रहा है अभी, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है, एंड में समेटिव असेसमेंट हो रहा है, उसका मेन पर्पज है जो टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन है उसमें कैसे मॉडिफिकेशन होगा, उसमें कैसे रिवाइज होगा, तो एक बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, और उसमें क्या है जो एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा बच्चों का, तो वही है। तो टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन जो प्रोसेसेस है उसमें कैसे चेंजेस आएगा, उसमें कैसे रिवाइज होगा, जैसे ज्यादातर जो बच्चे लर्न कर रहे हैं उनका बेसिकली बेटर लर्निंग होगा, वो ग्रास्पिंग नॉलेज प्रॉपरली, दे आर हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज, दे मस्ट हैव कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट, दे मस्ट हैव कमांड ओवर द कॉन्सेप्ट्स। ओके, कोई भी कॉन्सेप्ट को वो प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये सब चीज के ऊपर ध्यान दे रहा है। तो बेसिकली असेसमेंट का अर्थ वही है, हमारा टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन में कैसे मॉडिफिकेशन होगा, तो एक हमारा जो लर्निंग डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस एक्चुअली। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 को चलेंगे। What does NCF 2023 recommend to reduce the stress of board examinations at grade 10 and grade 12? Introduce more subjects in the curriculum, focus on rote learning in board examinations, view examinations as learning experiences, increase the frequency of board examinations। इसमें जो 4 ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एग्जामिनेशन एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, जैसे अभी जो करेंट में क्या है, एग्जामिनेशन एक बेसिकली स्ट्रेस होता है, एक बर्डनसम होता है। ठीक है, कुछ तो प्रेशर है, मगर एनसीएफ बोल रहा है कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, एग्जामिनेशन एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। आपका लेवल क्या है, द चाइल्ड थिंक अबाउट हिमसेल्फ और आवरसेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, डिटेक्ट द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। ओके, तो इसलिए तो होलिस्टिक जो रिपोर्ट कार्ड होगा, पीयर असेसमेंट होगा, टीचर असेसमेंट होगा, पेरेंट्स भी चाइल्ड को असेस करेंगे। ठीक है, तो एक ओवरऑल एक लर्निंग एक्सपीरियंस, एक रिड्यूस फ्री एटमॉस्फेयर होगा, इतना बड़ा रिड्यूस फ्री एटमॉस्फेयर होगा। अभी वो चाइल्ड देखेगा कि मेरा लेवल यही है, इस एरिया में मेरा वीक है, और मेरा नेक्स्ट ग्रेड में मैं उसी में इंप्रूवमेंट लाऊंगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन एक लर्निंग एक्सपीरियंस है रादर देन एक स्ट्रेस, इट मींस मोर स्ट्रेस मैनेजमेंट और मोर बर्डन मैनेजमेंट। तो इट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एग्जामिनेशन, इसको एम्फासाइज किया है एनसीएफ ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच की प्रिंसिपल ऑफ गुड असेसमेंट एम्फासाइजेस अलाइनिंग असेसमेंट्स विद कॉम्पिटेंसीज एंड लर्निंग आउटकम्स? गुड असेसमेंट emphasizes aligning assessments with competencies and learning outcomes।
assessment should be constructive, assessment should accommodate student diversity, assessment should measure achievement of competencies, assessment should be stage appropriate. तो यहां पर जो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. असेसमेंट शुड मेजर अचीवमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज. ये जो असेसमेंट अभी फॉर्मेटिव है कि एंड में सबमिटिव असेसमेंट होता है, तो उसमें क्या है, तो उसको मेजर किया जाएगा कि आप कितना कॉम्पिटेंट हो, द चाइल्ड कितना कॉम्पिटेंट है, उसको मेजर किया जाएगा. ठीक है, तो ऑनगोइंग अचीवमेंट हम फॉर्मेटिव में देखेंगे, सबमिटिव में ओवरऑल अचीवमेंट देखेंगे, और चाइल्ड का कॉम्पिटेंसी लेवल को हम मेजर करेंगे. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 37 को चलेंगे. At which stage should assessment primarily rely on observation but not burden the child with explicit test and examination according to NCERT? तो बेसिकली जो असेसमेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड असेसमेंट फाउंडेशन स्टेज, जो एज ग्रुप है 3 to 8 years, बाल बाटिका टू स्टैंडर्ड 2, जो प्ले बेस्ड लर्निंग होता है, उसमें जो असेसमेंट होगा वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड असेसमेंट होगा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38 को चलेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट शुड असेसमेंट एट द प्रिपरेटरी स्टेज, राइट? व्हाट शुड असेसमेंट एट द प्रिपरेटरी स्टेज फोकस ऑन अकॉर्डिंग टू एनसीएफ? तो प्रिपरेटरी स्टेज एक्चुअली स्टैंडर्ड 3, 4, 5, नहीं कि 8 to 11 years, 3, 4, 5 स्टेज. कॉम्प्रिहेंसिव समेटिव असेसमेंट, assessing readiness for board examinations, promoting diversity in assessment methods, and introducing standardized test. Mainly option C is the correct answer. Promoting diversity in assessment methods. Different assessment methods को diverse होगा assessment method. ठीक है, तो preparatory stage जो standard 3, 4, 5 होगा वो promoting diversity in assessment methods. Okay. तो बेसिकली जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड होगा, असाइनमेंट बेस्ड होगा, और क्विज होगा कि डिबेट होगा. ठीक है, तो आफ्टर मॉड्यूलर टेस्ट होगा, आफ्टर ईच मॉड्यूल, आफ्टर ईच यूनिट एक टेस्ट होगा, प्रिपरेटरी टेस्ट होगा. तो ये सब है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 39 को चलेंगे. व्हिच स्टेज एम्फसाइजेस conceptual understandings and higher order capacities in assessment, right? Which stage emphasizes conceptual understanding and higher order capacities in assessment? Foundational, preparatory, middle, secondary. एक्चुअली वो दोनों होना चाहिए, मिडिल सेकेंडरी होना चाहिए, मगर यहां पर मेरा जो आंसर ऑप्शन डी होगा, सेकेंडरी स्टेज में, क्योंकि हायर ऑर्डर कैपेसिटीज दिया है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हायर ऑर्डर कैपेसिटीज, तो ये सेकेंडरी स्टेज में ही होगा. ठीक है, मिडिल में भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हायर ऑर्डर कैपेसिटीज है, मगर हायर ऑर्डर कैपेसिटीज दिया है मीन सेकेंडरी स्टेज. तो ऑप्शन डी स्टैंडर्ड 9 to 12 जो एज 14 to 18 ईयर है. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40 को चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट शुड बी यूज्ड? What type of assessment should be used at the secondary stage to record students learning against competencies? सेकेंडरी स्टेज में किस तरीके का असेसमेंट होना चाहिए? फॉर्मेटिव, सबमिटिव, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट. तो सबमिटिव असेसमेंट एक्चुअली सेकेंडरी स्टेज में आ जाता है. तो हम ओवरऑल अचीवमेंट देखेंगे एंड में जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा. ठीक है, उसमें हमको मेजर करना है, देखना है कि ओवरऑल अचीवमेंट को मेजर करना है. ठीक है, तो ओवरऑल कॉम्पिटेंसी को देखना है, वही है एट द एंड जो होता है समेटिव असेसमेंट. तो बेसिकली सेकेंडरी स्टेज में इंट्रोड्यूस किया जाएगा समेटिव असेसमेंट को. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 41. इन एनसीएफ 2023 व्हाट इज द पर्पज ऑफ होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड? जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है, टू रैंक स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, टू असेस स्टूडेंट नॉलेज ओनली, टू इन्वॉल्व पेरेंट्स in their children's education and development, to eliminate assessments entirely. ऑप्शन सी होगा इसमें, टू इन्वॉल्व पेरेंट्स इन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड डेवलपमेंट. तो पेरेंट का भी असेसमेंट रहेगा, जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसका जैसे पीयर असेसमेंट रहेगा, जो चाइल्ड का जो फ्रेंड्स है उनका असेसमेंट रहेगा, टीचर असेसमेंट रहेगा. ओके, और पेरेंट का भी असेसमेंट रहेगा. ठीक है, तो ओवरऑल
peers assessment, tiers assessment and teachers assessment and parents assessment रहेगा. तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टू इन्वॉल्व पेरेंट्स इन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड डेवलपमेंट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 42 को चलेंगे. व्हाट डज एनसीएफ 2023 सजेस्ट फॉर एड्रेसिंग स्टूडेंट डाइवर्सिटी इन असेसमेंट? फॉर एड्रेसिंग स्टूडेंट डाइवर्सिटी इन असेसमेंट, use a one size fit all approach, grading assessment based on student performance, accommodate for students performing at different levels, eliminate variety in assessment methods. Option C is the correct answer. Accommodate for students performing at different levels. So addressing student diversity in assessment, तो डिफरेंट लेवल में कैसे स्टूडेंट परफॉर्म करेगा, डिफरेंट, चाहे डिबेट हो, चाहे क्विज हो, चाहे सेमिनार हो, चाहे सिंपोजियम हो, चाहे लैब एक्सपेरिमेंट हो, कि चाहे स्पोर्ट्स हो, ओके, चाहे आर्ट हो, चाहे ड्रामा हो, तो उसमें कैसे चाइल्ड का डिफरेंट लेवल्स में उसका परफॉर्मेंस वो कैसे खुद को अकोमोडेट करेगा और बेस्ट देने के लिए ट्राई करेगा, वही आ जाता है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द पर्पज ऑफ असेसमेंट्स बीइंग स्टेज अप्रोप्रिएट आज रिकमेंडेड बाय एनसीएफ 2023? स्टेज अप्रोप्रिएट, जो जैसे फाउंडेशन स्टेज है, कि प्रिपेरेटरी है, कि मिडिल है, कि सेकेंडरी स्टेज है, स्टेज अप्रोप्रिएट में असेसमेंट किया गया है. ओके, कौन सा स्टेज में किस तरीके का असेसमेंट होगा. टू मेक असेसमेंट्स मोर चैलेंजिंग, टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन असेसमेंट्स अक्रॉस ऑल स्टेजेस, टू अलाइन असेसमेंट्स with students developmental stages, to eliminate assessments at certain stages. तो ये जो स्टेज अप्रोप्रिएट असेसमेंट है वो बेसिक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. जैसे धीरे धीरे चाइल्ड ग्रो करता रहेगा तो जो असेसमेंट में चेंजेस आता रहेगा. टू अलाइन असेसमेंट्स विद स्टूडेंट्स डेवलपमेंटल स्टेजेस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 44 को चलिए. अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2023, what should assessment support in addition to the formative function? Certification of students, learning progress of students, elimination of summative assessments, rote learning. जैसे formative assessment होता है, जो ongoing टेस्ट, एक दो यूनिट्स कंप्लीट होने के बाद टेस्ट होगा, ठीक है, तो चाइल्ड को फीडबैक दिया जाएगा, ठीक है. तो उसमें what should assessment support in addition to the formative function? It is learning progress of students. Option B is the correct answer. ये जो formative assessment हो रहा है, ongoing assessment, उसमें चाइल्ड उसका खुद का स्ट्रेंथ वीकनेस को डिटेक्ट करेगा, सेल्फ रियलाइज करेगा, ठीक है, और उसका जो एरिया में वीक है वो उसके ऊपर ज्यादा वर्कआउट करेगा. तो लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45, how often should summative assessments be conducted at the secondary stage according to NCF 2023? Monthly, yearly, at the end of each lesson, periodically, at logical intervals. जो पहले जो समेटिव असेसमेंट था एंड में होता था, ओके, ओवरऑल अचीवमेंट को मेजर करने के लिए वो एंड में होता था, मगर एनसीएफ बोल रहा है अभी पीरियोडिकली होगा, पीरियोडिकली एट लॉजिकल इंटरवल्स. एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, पीरियोडिकली होगा, ठीक है. इसीलिए तो अभी बोर्ड एग्जामिनेशन जो एम्फसाइज कर रहा है एनसीएफ कि बोर्ड एग्जामिनेशन मोर देन वंस होना चाहिए, स्टैंडर्ड 10 एंड स्टैंडर्ड 12 में मोर देन वंस होना चाहिए, तो वही है पीरियोडिकल एट लॉजिकल इंटरवल्स, ठीक है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 46 को चलेंगे. व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ असेसमेंट इन द स्कूलिंग सिस्टम? व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ असेसमेंट इन द स्कूलिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2023? तो उसमें आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 46, मेजरिंग रोट मेमोराइजेशन स्किल्स, सर्टिफाइंग स्टूडेंट लर्निंग, प्रमोटिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स. तो मेनली प्राइमरी एम ऑफ असेसमेंट इज प्रमोटिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट. जो मेन असेसमेंट का मतलब है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है कि समेटिव असेसमेंट है, मेन है कैसे जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो प्रमोट होगा, कैसे लर्निंग में डेवलपमेंट आएगा, ठीक है. तो वही ऑप्शन सी, प्रमोटिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 47, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2023, व्हाट इज द टर्म ऑफ असेसमेंट दैट प्रोवाइड्स इनपुट्स टू गाइड टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस? टू गाइड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इट इज ऑप्शन असेसमेंट फॉर लर्निंग. फॉर लर्निंग मीन्स ऑनगोइंग टेस्ट.
जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। ओके, जैसे अभी फॉर्मेटिव असेसमेंट हाफ ईयरली के पहले 2 है और हाफ ईयरली के बाद 2 है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा तो चाइल्ड को कंटिन्यूअसली फीडबैक मिलता जाएगा, ठीक है। और उसमें टीचर्स जो है उनका जो टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शंस में मॉडिफिकेशन लाएंगे, रिवाइज करेंगे, चेंजेस लाएंगे। तो ये फॉर्मेटिव फॉर असेसमेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 को चलेंगे। What does NCF 2023 recommend to address the challenges in the current? Again, one question है, to address the challenges in the current assessment system. अभी जो करंट असेसमेंट सिस्टम चल रहा है उसमें जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा। तो एनसीएफ क्या रिकमेंड किया है? इंट्रोड्यूसिंग मोर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, फोकसिंग सोली ऑन रूट लर्निंग, मूविंग अवे फ्रॉम मैकेनिकल एंड रूटीनाइज्ड असेसमेंट, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मूविंग अवे फ्रॉम मैकेनिकल एंड रूटीनाइज्ड असेसमेंट। ये जो रूटीनाइज्ड असेसमेंट है उससे हम चलेंगे। आफ्टर एवरी कंटेंट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी कंटेंट एक असेसमेंट होना चाहिए, कंटिन्यूअस असेसमेंट होना चाहिए। ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी यूनिट असेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। कोई रूटीन बेस्ड असेसमेंट नहीं, जैसे रूटीन बेस्ड है कि हाफ ईयरली एग्जाम होगा और जैसे ईयरली एग्जाम होगा तो पहले से वो चाइल्ड के ऊपर बर्डन हो जाता है, एक स्ट्रेस आ जाता है, वो नहीं रहेगा। ये अभी मॉड्यूलर टेस्ट होगा, एवरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच मॉड्यूल असेसमेंट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ डज एनसीएफ 2023 व्यू द करेंट बोर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम? करेंट बोर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम को कैसे व्यू कर रहा है एनसीएफ? आज ए होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस, आज ए मैकेनिज्म फॉर एलिमिनेटिंग सब्जेक्ट्स, आज ए सोर्स ऑफ डीप एंजाइटी अमंग स्टूडेंट्स, आज ए कंटिन्यूअस असेसमेंट प्रोसेस। अभी जो है आज ए होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस। आजकल जो बोर्ड एग्जाम है वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, चाइल्ड को एक एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके, होलिस्टिक तो डिफरेंट एंगल में, उसमें एकेडमिक्स रहेगा, उसमें स्किल सब्जेक्ट रहेगा, उसमें लाइफ स्किल के ऊपर ग्रेड मिलेगा, ठीक है। और तो ये मिलाकर एक होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। ये नहीं कि ओनली हम परसेंटेज रैंक, ये बच्चा को अच्छा मिल गया और द चाइल्ड इज इन बेटर पोजीशन, ये नहीं, बट चाइल्ड को एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। आज ए होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 को चलेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2023 व्हाट शुड असेसमेंट्स प्राइमरीली मेजर? असेसमेंट्स क्या मेजर करता है? कॉम्पिटेंसी एंड लर्निंग आउटकम्स, रोट मेमोराइजेशन स्किल, स्टूडेंट डाइवर्सिटी, टीचर परफॉर्मेंस। तो ऑप्शन 50 ऑप्शन ए है, जो असेसमेंट कॉम्पिटेंसी, द चाइल्ड का जो चाइल्ड कितना कॉम्पिटेंट है, चाइल्ड का कितना कॉन्सेप्ट के ऊपर कितना कमांड है, जो कंसेप्चुअलाइज्ड लर्निंग, कंसेप्ट के ऊपर कितना एक्चुअली उसका कमांडिंग है, और उसका थिंकिंग स्किल्स क्या है, ठीक है। उसका जो कितना एबिलिटी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये आ जाता है। तो लर्निंग आउटकम्स, कॉम्पिटेंसी एंड लर्निंग आउटकम्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच प्रिंसिपल ऑफ गुड असेसमेंट emphasizes that assessment should be an ongoing process integrated with teaching and learning? असेसमेंट है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन वो इंटीग्रेट होता है टीचिंग लर्निंग के साथ, क्योंकि उसके साथ क्या है, द चाइल्ड उसका स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन को चेंज करता है, वैसा ही जो टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन में भी चेंजेस आएगा। टीचर्स भी मॉडिफाई करना चाहते हैं उनका टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन में। तो ये गुड असेसमेंट, क्या प्रिंसिपल ऑफ गुड असेसमेंट, देखिए ये जो दिया है प्रिंसिपल ऑफ गुड असेसमेंट क्या एम्फसाइज कर रहा है? असेसमेंट शुड मेजर अचीवमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, असेसमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टिव एंड डेवलपमेंटल, असेसमेंट शुड बी स्टेज अप्रोप्रिएट, असेसमेंट शुड प्रोवाइड टाइमली फीडबैक। यहाँ पर जो 51 है, इसका जो आंसर है बी है, असेसमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टिव एंड डेवलपमेंटल। ओके, असेसमेंट जो है शुड बी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डेवलपमेंटल होना चाहिए, जिसमें क्या होगा, चाइल्ड खुद रियलाइज करेगा और अदर साइड में टीचर्स भी उनका जो टीचिंग स्टाइल में रिवाइज लाएगा, उनका टीचिंग स्टाइल को स्टाइल में चेंजेस लाएगा, ठीक है। तो दोनों को, तो असेसमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टिव एंड डेवलपमेंटल होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट शुड असेसमेंट्स एट द मिडिल स्टेज एम्फसाइज?
मिडिल स्टेज का असेसमेंट के बारे में पूछा है। रोट लर्निंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हायर ऑर्डर कैपेसिटीज, एलिमिनेशन ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑब्जर्वेशंस ओनली। ऑप्शन बी आएगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हायर ऑर्डर कैपेसिटीज। ये भी सुइटेबल है सेकेंडरी स्टेज में, मगर सेकेंडरी स्टेज में क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग, थॉट प्रोवोकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे हाइपोथेटिकल स्किल, तो ये सब चीज आ जाता है, थोड़ा मोर देन हायर ऑर्डर कैपेसिटीज आ जाता है। तो इसमें ये मिडिल स्टेज में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हायर ऑर्डर कैपेसिटीज, मिडिल स्टेज मीन 6, 7, 8, क्योंकि 6, 7 जो मिडिल स्टेज में ज्यादातर सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ज्यादातर सब्जेक्ट के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 को चलेंगे। 53, what is the primary focus of assessments? What is the primary focus of assessments at the secondary stage? पूछा है, primary focus of assessment at the secondary stage standard 9 to 12, comprehensive classroom assessment, eliminating summative assessment, observations and reflections, standardized test for all subjects. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कॉम्प्रिहेंसिव क्लासरूम असेसमेंट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 53, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कॉम्प्रिहेंसिव क्लासरूम असेसमेंट। क्लासरूम असेसमेंट के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव लेवल में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच यूनिट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच मॉड्यूल, तो एक क्लासरूम असेसमेंट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, what assessment method should be used to assess learning at the secondary stage as per NCF 2023? What assessment method should be used to assess learning at the secondary stage? Again secondary stage के ऊपर पूछा है, only multiple choice questions, only oral assessments, a variety of methods including projects and role plays, elimination of assessments। तो इसमें आप ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए वेराइटी ऑफ मेथड्स इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स एंड रोल प्लेज। तो सेकेंडरी स्टेज में जो बच्चों को असेस किया जाएगा वो डिफरेंट मेथड्स एक्चुअली अप्लाई किया जाएगा। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, उसमें शॉर्ट आंसर रहेगा, उसमें कुछ पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 आज का लास्ट एमसीक्यू, उसके बाद थोड़ा हम एनसीएफ का की फीचर्स के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट शुड असेसमेंट्स एट द सेकेंडरी स्टेज प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर? तो सेकेंडरी स्टेज का जो असेसमेंट होता है, बेसिकली बोर्ड एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड 12 में होता है, उसमें बच्चों को वो कैसे प्रिपेयर करता है? बोर्ड एग्जामिनेशन ओनली, कॉम्पिटिटिव असेसमेंट्स ओनली, बोथ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड अदर सिलेक्शन टेस्ट, नो असेसमेंट्स बियॉन्ड द क्लासरूम। ऑप्शन सी, बोथ बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड अदर सिलेक्शन टेस्ट। अभी देखा होगा जैसे जेई एग्जाम है कि नीट एग्जाम है कि क्लाट एग्जामिनेशन है, ठीक है, और सीयूईटी एग्जाम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो बेसिकली बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड अदर सिलेक्शन टेस्ट दोनों आ जाएगा। तो इसलिए सेकेंडरी स्टेज में बच्चों को ऐसे प्रिपेयर किया जाएगा, असेस किया जाएगा कि वो बोर्ड एग्जाम के लिए कॉम्पिटेंट है और अदर सिलेक्शन टेस्ट के लिए भी कॉम्पिटेंट है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा की फीचर्स के ऊपर जाएंगे, की फीचर्स ऑफ एनसीएफ 2023, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट वन, इट इज 4 स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग। जो 4 स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग है, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देखा होगा। तो फाउंडेशन स्टेज है 3 to 8 ईयर्स, बाल वाटिका टू स्टैंडर्ड 2, प्री प्राइमरी टू ग्रेड 2, उसमें प्ले बेस्ड लर्निंग को एम्फसाइज किया गया है। और नेक्स्ट आएगा प्रिपरेटरी स्टेज, स्टैंडर्ड 8 to 11 ईयर्स, जिसमें स्टैंडर्ड 3 to 5, ग्रेड 3 to 5, उसमें बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को एम्फसाइज किया गया है। ठीक है, मिडिल स्टेज 11 to 14 ईयर्स, स्टैंडर्ड 6, 7, 8 आ जाएगा, ग्रेड 6 to 8 आप देखिए सब्जेक्ट के ऊपर एम्फसाइज किया जाएगा मिडिल स्टेज में। ठीक है, और सेकेंडरी स्टेज आ जाएगा 14 to 18 ईयर्स, स्टैंडर्ड 9 to स्टैंडर्ड 12, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, जैसे आर्ट इंटीग्रेटेड कि स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, ये सब लर्निंग होगा। तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में बता चुका हूं, सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड अमंग ईच अदर। ठीक है, जैसे बिजनेस स्टडीज साइकोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करेंगे, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी को इंटीग्रेट करेंगे करके हम
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा इट मीन्स बढ़िया से हम बच्चों को इट मीन्स सिखा सकते हैं, वो लर्न कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लाए एक्वायर करेंगे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। तो बेसिकली जो सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड आ जाएगा, जैसे साइंस का कोई कॉन्सेप्ट आप डिस्कस कर रहे हो तो कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के साथ लिंक करके आप पढ़ाइए to engage the students, and it must be attractive one, and the session would be interesting one. Easily the student actually they must have command over the concept, and their understanding level would be clear one, like this. So multidisciplinary education with flexibility. Flexibility का मीनिंग है सब्जेक्ट चॉइस। पहले क्या था, एक सब्जेक्ट एक्चुअली वो दे दिया जाता है कि यही सब्जेक्ट आपको लेना है, मगर अभी देखिए स्टैंडर्ड आप कोई भी स्किल सब्जेक्ट आप डिसाइड कर सकते हो 9, 10 में, एंड 11 में, स्टैंडर्ड 11 में अभी ऐसा पहले था साइंस स्ट्रीम की, कॉमर्स की, ह्यूमैनिटीज, अभी नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। तो ये 4 स्टेजेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट दे दिया, एम्फासाइज ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3। ओके, द चाइल्ड क्या है, बेसिक रीडिंग, बेसिक राइटिंग, बेसिक कंप्यूटेशनल स्किल, बेसिक न्यूमेरिकल स्किल वो लर्न कर लेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन डेवलपिंग बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड एरिथमेटिक स्किल्स इन अर्ली चाइल्डहुड, और ये दिस मिशन शुड बी कंप्लीटेड बाय ग्रेड 3। जब चाइल्ड का ग्रेड 3 कंप्लीट होगा, उसको बेसिक नॉलेज है लिटरेचर के ऊपर और बेसिक नॉलेज है एरिथमेटिक के ऊपर, जो एरिथमेटिक स्किल्स है, बेसिक स्किल्स है, वो लर्न ऑलरेडी कर चुका है, तो ठीक है। देन थर्ड है होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। तो नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। मैं बताया था कि इंस्टेड ऑफ रिजिड स्ट्रीम्स इन हायर क्लासेस, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, अभी फिजिक्स के साथ फाइन आर्ट लो, फिजिक्स के साथ अकाउंटेंसी लो, हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री लो, तो इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। तो इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिजिड स्ट्रीम्स इन हायर क्लासेस। फोकस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बता चुका हूं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। तो जैसे मिडिल स्टेज में 6 to 8 में क्या होगा, बैगलेस डेज होगा, उसमें लोकल ट्रेनर्स आएंगे, वो कारपेंट्री, आर्ट एंड क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, उसके ऊपर बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, और वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस होगा स्टैंडर्ड 6 में, चाहे कोडिंग हो, चाहे डाटा एंट्री हो, ठीक है, चाहे योगा हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, ये सब्जेक्ट कोई एक वोकेशनल सब्जेक्ट बच्चा लर्न करेगा। और जो क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग है कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है, उसमें क्रिएटिविटी लेवल बढ़ेगा चाइल्ड का। और हायर स्टेज में क्रिटिकल थिंकिंग, वो ज्यादातर वो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या है, वो डिफरेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ करेगा डिफरेंट एंगल से, ठीक है। तो कोई एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को वो 3-4 मेथड्स में सॉल्व करेगा, ठीक है। कोई साइंस का कोई बेसिकली कॉन्सेप्ट है, उसको डिफरेंट वेज में वो उसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। सब्जेक्ट्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग इंट्रोड्यूस्ड, ये सब न्यू सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग इंट्रोड्यूस्ड। तो उसमें क्या है, एक होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट आ रहा है चाइल्ड का डिफरेंट लेवल में, और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर इंटर कनेक्टेड अमंग ईच अदर, ठीक है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग के ऊपर एम्फसाइज किया गया है। नेक्स्ट है फोर्थ वन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड असेसमेंट्स। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड असेसमेंट्स में शिफ्ट फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो अभी ज्यादातर रोट मेमोराइजेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया है, कंसेप्चुअल लर्निंग और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन। जैसे मैं एग्जांपल दे चुका हूं, कोई भी आप साइंस टॉपिक को कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के साथ रिलेट कीजिए, और बाकी जब टीचर टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, वो कोई एक टॉपिक को डिस्कस कर रहा है, वो पिक्चर बेस होना चाहिए। तो स्मॉल कम टाइम में वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, और वो चाइल्ड भी उसको लर्न करेगा, अच्छे से ग्रास्प करेगा इजीली, ठीक है। तो असेसमेंट्स बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, ठीक है।
नेक्स्ट वन, फ्लेक्सिबल बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्या है, मल्टीपल टाइम्स बोर्ड एग्जाम जैसे एंड में एक बार होता था, अभी वो बोल रहा है कि मोर देन वंस होगा बोर्ड एग्जाम जो होगा स्टैंडर्ड 10 एंड स्टैंडर्ड 12 में, तो मल्टीपल टाइम्स होगा इन ए ईयर, सो दैट जो स्ट्रेस है, जो प्रेशर लेवल है बच्चों का कम हो जाएगा। और कोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ज्यादातर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को एम्फसाइज किया जाएगा। तो उसमें क्या है, जो मेमोराइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन है तो मेमोराइजेशन को डिस्कार्ड किया जाएगा। जो कोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जब आएगा, उसका थिंकिंग जो है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, थॉट प्रोवोकिंग है, कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ये डेवलप होगा और क्रिएटिविटी डेवलप होगा। वो खुद ट्राई करेगा वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सब्जेक्ट चॉइस रहेगा, ऐसा पहले क्या था, जैसे साइंस स्ट्रीम था, ह्यूमैनिटीज था और कॉमर्स था, उसमें वही सब्जेक्ट लेना था, मगर अभी सब कोई भी सब्जेक्ट वो चाइल्ड का इंटरेस्ट के हिसाब से बोलेगा। और फ्लेक्सिबल असेसमेंट मेथड्स रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज में ये दे दिया कि आपका जो स्टैंडर्ड 5 तक ज्यादातर रीजनल लैंग्वेज के ऊपर एम्फसाइज किया जाएगा, और 5 to 8 तक अप टू स्टैंडर्ड 5 कंप्लीटली मदर टंग जो रीजनल लैंग्वेज में टीचिंग किया जाएगा, और स्टैंडर्ड 5 के बाद अप टू 8 भी रीजनल लैंग्वेज के ऊपर एम्फसाइज किया जाएगा। मल्टीलिंग्विज्म, एम्फासिस ऑन मल्टीलिंग्विज्म एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को एम्फासाइज किया गया है, ठीक है। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वही दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन में, वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रेड 6, ग्रेड 6 से कोई ना कोई वोकेशनल एजुकेशन चाइल्ड लेगा, ठीक है। उसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन स्किल्स लाइक कोडिंग, कारपेंट्री, एग्रीकल्चर एंड एंटरप्रेन्योरशिप में वही बताया था कि अभी जैसे हैंड्स ऑन लर्निंग स्किल्स जो वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस होगा, उसमें सपोज कोई भी एक हैंडीक्राफ्ट है, कि सपोज कोडिंग है, कि डाटा एंट्री है, कोई भी एक स्किल सब्जेक्ट बोलेगा चाइल्ड। और उसमें बैकलेस डेज भी मिडिल स्कूल में स्टैंडर्ड 6 to 8 में, बैकलेस डेज में क्या होगा, लोकल ट्रेनर को हम लेके, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट हो, कि चाहे एग्रीकल्चर हो, उसके ऊपर हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिया है 50% ऑफ स्टूडेंट्स टू बी एक्सपोज टू वोकेशनल ट्रेनिंग बाय 2030, ये भी एक डाटा है। जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग में जो 50% ऑफ द स्टूडेंट्स वो एक्सपोज होंगे वोकेशनल ट्रेनिंग में बाय 2030। नेक्स्ट वन, टेक्नोलॉजी enabled learning, use of digital resources, artificial intelligence tools and online learning to enhance classroom teaching। क्लासरूम टीचिंग में ज्यादातर डिजिटल रिसोर्सेस अभी जैसे बच्चों का असेसमेंट होगा, वो टैबलेट यूज करेंगे और उसमें उनको कुछ स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा, और ऐसे कुछ वो एक्टिविटी असाइनमेंट करेंगे बाय यूजिंग द टैबलेट। तो ये सब चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब बन रहा है, उसमें बच्चों को एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये सब आ जाएगा। प्रमोशन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स, अभी लाइब्रेरीज डिजिटल होगा, तो डिजिटल लाइब्रेरीज एक्चुअली आप अभी जाकर एक्चुअली चेक कर सकते हैं डिजिटली कि पर्टिकुलरली बुक जो है आप कोई ई मैगजीन पढ़ सकते हैं। अभी ऐसा नहीं, आप डेस्कटॉप में जाइए, आप बैठिए, आप ई मैगजीन पढ़िए, कोई जर्नल पढ़िए, कोई स्पेसिफिक स्टोरी बुक को पढ़िए, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं आप फिजिकल बुक आप सर्च करेंगे, ठीक है। अभी आप डेस्कटॉप में कि लैपटॉप में आप लाइब्रेरी के अंदर जाकर ई मैगजीन, जर्नल्स, ई बुक्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है। 9th में पर्सनलाइज्ड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, CWSN, जो डिसेबल चिल्ड्रन है, जो हैंडीकैप चिल्ड्रन है, दे डू नॉट सेपरेट देमसेल्व्स, दे सिट विद द नॉर्मल चाइल्ड। अभी ओके, वही सेम क्लासरूम में बैठेंगे, सेम थिंग्स लर्न करेंगे, मगर इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट होगा, ठीक है, मगर दे डू नॉट इट मींस डिस्क्रिमिनेट विथ नॉर्मल चाइल्ड, ठीक है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ्स फॉर डिफरेंट लर्निंग पेसेस एंड स्टाइल्स, तो डिफरेंट लर्निंग पेसेस एंड स्टाइल्स रहेगा।
सेम क्लासरूम में गिफ्टेड स्टूडेंट्स रहेंगे, स्लो लर्नर्स रहेंगे, डिसेबल स्टूडेंट्स रहेंगे, तो उनको डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शंस, डाइवर्स इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाएगा, डिफरेंट टीचिंग स्टाइल को फॉलो किया जाएगा उनका जो लर्निंग डेवलपमेंट के लिए, उनका जो लर्निंग ग्रोथ के लिए, ठीक है। मगर वो अभी उनको सेपरेट नहीं किया जाएगा। जैसे पहले क्या था, सपोर्टिव लर्नर्स को सेपरेट क्लासरूम में बैठा देते थे, कि डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एडुकेटर्स एक सेपरेट रूम में पढ़ाता था, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। मगर इंस्ट्रक्शन डिफरेंट रहेगा, सेम क्लासरूम, इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट रहेगा डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट वन, आर्ट, स्पोर्ट्स एंड लाइफ स्किल्स इंटीग्रेटेड इनटू एजुकेशन में जैसे बताया स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग की, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, स्पोर्ट्स, योगा, आर्ट्स एंड लाइफ स्किल्स टू बी पार्ट ऑफ द मेन करिकुलम। इक्वल इंपोर्टेंस टू को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को इंपोर्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। फोकस ऑन एथिकल, मोरल एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है, मोरल वैल्यूज, सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, ये सब इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस थ्रू एजुकेशन, ठीक है, ये सब एम्फासाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ओनली एकेडमिक्स के ऊपर एम्फासाइज नहीं किया जाएगा। एकेडमिक्स के साथ जैसे को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर है, कि सपोज मोरल एजुकेशन है, एनवायरमेंटल एजुकेशन है, एथिकल एजुकेशन में जैसे आप अदर्स का फीलिंग है कि जो अदर्स का रेस्पॉन्स को आप रियलाइज करेंगे, अदर्स को आप यू एक्सटेंड हेल्प टू अदर्स, ओके, तो ये सब चीज रहेगा। मोरल वैल्यूज, सिटीजनशिप एजुकेशन, ओके, कैसे हम एनवायरमेंटल कॉन्शियस रहेंगे, तो सस्टेनेबल, इट मींस आवर एनवायरमेंट शुड बी सस्टेनेबल वन, ओके, कैसे हम एनवायरमेंटल क्राइसिस को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, हमारा कैसे जो अनक्लीन कंडीशन है एनवायरमेंट में उसको कैसे डिस्कार्ड करेंगे। तो ओवरऑल इट मींस नॉट ओनली एम्फासाइज ऑन एकेडमिक्स, डिफरेंट एरियाज में एम्फासाइज किया जाएगा, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर है, रेगुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ड्राइवन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड पेडागोजिकल इनोवेशंस। अभी आप देखा होगा कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए 50 आवर्स, मिनिमम 50 आवर्स ट्रेनिंग चाहिए टीचर्स को एक ईयर में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कैसे जो टीचर्स है दे अप टू डेट नॉलेज, they can accommodate and cope up with new technology, so that their teaching learning transaction would be interesting one. They can teach everything with availing of technology, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर, IKS के ऊपर देखिए, प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज, इंक्लूजन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, हिस्ट्री एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में आप ट्रेडिशनल नॉलेज, जो पर्टिकुलर एरिया में एक ट्रेडिशनल, सपोज आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए फेमस था, कि कोई पर्टिकुलर डांस के लिए फेमस था, कि कोई हेरिटेज साइट है वो पर्टिकुलर एरिया के लिए फेमस था, तो उसको डेवलप किया जाएगा। तो बच्चों को उस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो पर्टिकुलर डांस था एक, जो एंसेस्ट्रल टाइम में एक्चुअली वो डांस पर्टिकुलर एरिया में बहुत फेमस था, तो उसको अभी प्रमोट किया जाएगा। कोई ऐसा आर्ट एंड क्राफ्ट पर्टिकुलर एरिया में बहुत फेमस था, सो अभी धीरे धीरे उसको बच्चे अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, मगर उसके ऊपर बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाएगा कि ये आपका एरिया में ये आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत फेमस था, तो उसके ऊपर उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और उनको उसके ऊपर दे लर्न एक्चुअली more and more, and so that they can preserve the art and craft dance of their area, ठीक है। तो ये सब इंडियन नॉलेज सिस्टम में आ जाता है। बाकी कुछ असेसमेंट स्ट्रक्चर को देखेंगे इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ NCF 2023। अब देखिए, फाउंडेशन स्टेज में 3 to 8 years प्ले बेस्ड असेसमेंट, प्री प्राइमरी टू ग्रेड 2, इनफॉर्मल, प्ले बेस्ड एंड ऑब्जर्वेशन ड्राइवन। उनका जो असेसमेंट होगा ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगा, ओके, ऐसे कुछ टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा, मगर हम ऑब्जर्व करेंगे उनका असेसमेंट को। नो फॉर्मल एग्जाम्स। टीचर असेस स्टूडेंट्स थ्रू स्टोरी टेलिंग है, एक्टिविटीज, इंटरेक्शंस एंड ऑब्जर्वेशंस। फोकस ऑन अर्ली लिटरेसी, न्यूमरसी, सोशियो इमोशनल स्किल्स एंड मोटर डेवलपमेंट। सोशियो इमोशनल वही है, सोशियो इमोशनल कैसे
उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है, कैसे रिलेशनशिप वो डेवलप करेंगे, ठीक है, कैसे अदर्स का फीलिंग को वो रियलाइज करेंगे, ठीक है, और कैसे सोसाइटी का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कैसे अडाप्ट हो जाएंगे, कैसे सोशल रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, इमोशनल स्किल्स में सपोज उनका प्रेशर जो स्ट्रेस है उसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, वो खुद को सेल्फ रियलाइज करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब चीज आ जाएगा सोशियो इमोशनल स्किल्स में। मोटर डेवलपमेंट में आपको बेसिकली जो है वॉकिंग, रनिंग, ये सब आ जाता है, स्विमिंग, ये जो मोटर डेवलपमेंट वही रिलेटेड है। और उसमें जो चाइल्ड कैसे वो राइटिंग डेवलप करेगा, पेन को पकड़ के कैसे लिखेगा, उसका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, जैसे उसका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होगा, तो ये सब मोटर डेवलपमेंट के ऊपर आ जाता है, ठीक है। बाकी मेथड्स ऑफ असेसमेंट एनेक्डोटल रिकॉर्ड रहेगा, टीचर उनका नोट्स करता रहेगा, चाइल्ड का प्रोग्रेस को नोट करता रहेगा, वही एनेक्डोटल रिकॉर्ड से। पोर्टफोलियो बेस्ड मींस उनका ड्राइंग्स, प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज को कलेक्ट करेगा स्टूडेंट्स का। ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट, टीचर्स ऑब्जर्व प्ले एंड क्लासरूम पार्टिसिपेशन, ठीक है। सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, बेसिक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस फॉर चिल्ड्रन, तो चाइल्ड कैसे सेल्फ रियलाइज करेगा और कैसे उसका जो फ्रेंड्स है वो भी असेस करेगा उसका फ्रेंड को, एक चाइल्ड उसका फ्रेंड को असेस करेगा, ठीक है, सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। ये सब मेथड्स ऑफ असेसमेंट रहेगा फाउंडेशन स्टेज में। नेक्स्ट प्रिपेरेटरी स्टेज 8 to 11 ईयर्स, एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ये स्टैंडर्ड 3 to 5 है ग्रेड्स। शिफ्ट टुवर्ड्स स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट बट स्टिल फॉर्मेटिव एंड नॉन स्ट्रेसफुल। स्ट्रक्चर्ड जो है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट आंसर रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, पैसेज रहेगा, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, वही फॉर्मेटिव ऑनगोइंग असेसमेंट, कंटिन्यूअस असेसमेंट होता रहेगा और नॉन स्ट्रेसफुल होगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रादर देन मेमोराइजेशन, कॉन्सेप्ट कैसे बच्चा, द चाइल्ड कैसे कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न करेगा, उसका जो कंप्लीट नॉलेज रहेगा कॉन्सेप्ट के ऊपर। जैसे असेसमेंट फोकस ऑन लैंग्वेज, न्यूमरसी, क्रिएटिविटी एंड सोशियो इमोशनल स्किल्स, असेसमेंट का फोकस रहेगा, ठीक है। और यहां पर मेथड्स हम देखेंगे, मेथड्स ऑफ असेसमेंट, टीचर ऑब्जर्वेशंस, ट्रैकिंग प्रोग्रेस थ्रू डेली एक्टिविटीज एंड क्लास पार्टिसिपेशन को टीचर ऑब्जर्व करेगा। ओरल असेसमेंट रहेगा, कुछ स्टोरी टेलिंग, द चाइल्ड कुछ स्टोरी बोलेगा, कुछ पोएम्स रिसाइट करेगा, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। प्रोजेक्ट वर्क एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी, साइंस एक्सपेरिमेंट्स की, आर्ट एंड क्राफ्ट की, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, इसके ऊपर एम्फसाइज किया जाएगा। रिटन असेसमेंट रहेगा, शॉर्ट टेस्ट रहेगा, वर्कशीट रहेगा, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स रहेगा, ठीक है। एंड लास्ट वन सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, स्टूडेंट रिव्यू देयर ओन एंड देयर पीयर्स वर्क, को खुद को रिव्यू करेगा चाइल्ड और उसका पीयर को भी रिव्यू करेगा, ठीक है। ये सब मेथड्स ऑफ असेसमेंट रहेगा प्रिपेरेटरी स्टेज में। नेक्स्ट मिडिल स्टेज 11 to 14 ईयर्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट रहेगा। मिडिल स्टेज में ज्यादातर सब्जेक्ट को एम्फसाइज किया जाता है। मिडिल स्टेज में ग्रेड 6 to 8, फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये आ जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग, एक कॉन्सेप्ट, जैसे आप एक न्यूमेरिकल दे दिए, वो चाहेगा कि ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन डिफरेंट अल्टरनेटिव मेथड्स, कि कोई पर्टिकुलर एक साइंस का एक कॉन्सेप्ट को वो डिफरेंट वेज में वो उसको एक्सप्रेस करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये सब एम्फसाइज होगा। ग्रेडेड असेसमेंट्स विथ ए मिक्स ऑफ फॉर्मेटिव एंड ग्रेडेड असेसमेंट्स, एक्चुअली ग्रेडेड असेसमेंट्स क्या है, डिफरेंट, सपोज हम एमसीक्यू बेस क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट आंसर करेंगे, पैराग्राफ करेंगे, ओपन बुक क्वेश्चंस देंगे, तो इसी केस में फॉर्मेटिव समेटिव एवेल्युएशन होगा, एवेल्युएट किया जाएगा बच्चों को। और ए मल्टी डिसिप्लिनरी एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मल्टी डिसिप्लिनरी बोला था कि सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड अमंग ईच अदर, जैसे स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंटरकनेक्टेड अमंग ईच अदर, कोई एक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे बायो में, उसको कनेक्ट करेंगे इकोनॉमिक्स के साथ, उसको कनेक्ट करेंगे ज्योग्राफी के साथ, ठीक है। कि आप जैसे हिस्ट्री में कोई कॉन्सेप्ट है, उसको हम कनेक्ट करेंगे फिजिक्स के साथ की केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट रहेगा। और एक्सपीरियंशियल में हैंड्स ऑन लर्निंग, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ता जाएगा, वो खुद कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट प्रिपेयर करेगा, कुछ हैंडीक्राफ्ट मटेरियल प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो खुद एग्रीकल्चर के ऊपर नॉलेज एक्वायर करेगा, ट्रेनिंग लेगा, ठीक है।
कुछ डिजिटल टूल्स के ऊपर वो खुद लर्न करेगा। तो एक्सपीरियंशियल हैंड्स ऑन लर्निंग जो है, ओके, हैंडमेड एक्टिविटीज, वो खुद में वो उसको ट्रेनिंग लेने के बाद, लोकल ट्रेनर्स उनको ट्रेनिंग देने के बाद वो खुद बना सकता है। ठीक है, तो ये सब एम्फासाइज होगा मिडिल स्टेज में। नेक्स्ट आप मेथड्स ऑफ असेसमेंट देखिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, टेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज रादर देन फैक्ट्स, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट, केस स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट्स, पीरियोडिक रिटन असेसमेंट, शॉर्ट आंसर टेस्ट, ओपन बुक टेस्ट, क्विजेस, self reflection and peer feedback, students reflect on their learning process, performance based assessment, drama, debate, coding task, science experiment। तो ये सब डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसमेंट रहेगा मिडिल स्टेज में। लास्ट स्टेज आएगा सेकेंडरी स्टेज, 14 to 18 ईयर्स, जो स्टैंडर्ड 9 to स्टैंडर्ड 12 है, फ्लेक्सिबल एंड मल्टीपल मोड्स ऑफ असेसमेंट। तो मेन है मल्टी डिसिप्लिनरी एंड फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट चॉइसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेक्सिबल मीन्स आप खुद सब्जेक्ट चूज करेंगे, जैसे फिजिक्स, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, आप म्यूजिक, ऐसे सब्जेक्ट आप रख सकते हो। ठीक है, आप जो सब्जेक्ट चूज करोगे वो आपका इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। और मल्टी डिसिप्लिनरी, अभी कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। ठीक है, चाहे उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेगा, कंप्यूटर साइंस रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, मेनी सब्जेक्ट्स रहेगा, तो आप चूज करो। अभी जो स्ट्रीम्स था पहले, साइंस की, ह्यूमैनिटीज, जो कॉमर्स स्ट्रीम था एंड पर्टिकुलरली स्पेसिफिक सब्जेक्ट था, अभी नहीं है। ओके, शिफ्ट फ्रॉम हाई स्टेक एग्जाम्स टू मॉड्यूलर क्रेडिट बेस्ड। तो मॉड्यूलर एग्जाम वही है, एक मॉड्यूल, जैसे कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल में एक पर्टिकुलर मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद असेसमेंट होगा, वैसा ही एक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 यूनिट असेसमेंट होगा। ओके, तो क्लास असेसमेंट के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया जाएगा। रियल लाइफ एप्लीकेशंस, रिसर्च एंड इंटर्नशिप। रियल लाइफ एप्लीकेशंस वही है, हम कनेक्ट करेंगे सब्जेक्ट को, जैसे आप बिजनेस स्टडीज को साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसे आप कोई भी साइंस कंटेंट को एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करेंगे, कि कोई हिस्ट्री में कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप पूरा आर्ट बेस लेकर उसको सपोज कनेक्ट करके उसको इंटरेस्टिंग करेंगे। तो ये सब चीज आ जाता है रियल लाइफ एप्लीकेशंस। और इंटर्नशिप रिसर्च में बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा कैसे चाइल्ड का। सो इसमें क्रिएटिविटी, जो क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब है, वो क्या है, द चाइल्ड वुड बी मोर क्रिएटिव वन। द चाइल्ड एक्चुअली कोई भी कॉन्सेप्ट है उसका थिंकिंग वो बहुत तरीके से उसको सोचेगा, उसको सॉल्व करने के लिए, उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए। बोर्ड एग्जाम्स आर रिस्ट्रक्चर्ड, तो मल्टीपल टाइम्स इन ए ईयर अभी प्रपोजल है एनसीएफ में। असेसमेंट मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम्स रहेगा, मॉड्यूलर बोर्ड मल्टीपल टाइम्स एग्जाम होगा ड्यूरिंग ए ईयर। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, ये सब स्किल बेस्ड असेसमेंट रहेगा। इंटर्नशिप एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर रहेगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट वर्क, जैसे कंबाइन होगा, सभी सब्जेक्ट को आप इंक्लूड करके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बायोलॉजी इंफॉर्मेशन रहेगा, उसमें इकोनॉमिक्स रहेगा, उसमें फिजिक्स रहेगा, उसमें केमिस्ट्री रहेगा, उसको मैथमेटिक्स रहेगा। तो सभी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन में एक आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। पोर्टफोलियो एंड डिजिटल रिकॉर्ड, आपका जो एकेडमिक है कि एक्स्ट्रा करिकुलर है, वोकेशनल स्किल्स है, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन होगा। ओके, डिजिटल रिकॉर्ड होगा, जैसे हम डिजिटली उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये सब आ जाएगा। टाइप्स ऑफ बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर दिया है, देखिए, मल्टीपल बोर्ड एग्जाम्स अटेम्प्ट्स, फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम्स, फोकस ऑन डीप लर्निंग, नॉट जस्ट मार्क्स। ठीक है, तो एग्जामिनेशन एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, तो डीप लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। मार्क, हमको मार्क परसेंटेज नहीं चाहिए। तो उसमें देखो, ओवरऑल शिफ्ट इन असेसमेंट फिलोसॉफी में, रोट लर्निंग टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एग्जाम सेंट्रिक टू होलिस्टिक लर्निंग एवेल्युएशन, फ्रॉम मेमोराइजेशन टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, कि रिजिड बोर्ड एग्जाम टू फ्लेक्सिबल मॉड्यूलर असेसमेंट, ये सब कैसे शिफ्ट हो रहा है देखिए। तो ओवरऑल शिफ्ट इन असेसमेंट फिलोसॉफी। ठीक है, बाकी थोड़ा होलिस्टिक 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड के ऊपर हम देखेंगे इन एनसीएफ 2023। देखिए, की फीचर्स ऑफ द होलिस्टिक 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल मीन्स एकेडमिक्स को असेस किया जाएगा, को करिकुलर एक्टिविटीज को असेस किया जाएगा, लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स में क्या आता है, लाइफ स्किल्स में जैसे लीडरशिप है, कोलाबोरेशन है, कोऑपरेशन है, ठीक है,
और टीम स्पिरिट है, तो ये सब लाइफ स्किल्स में आ जाता है। ठीक है, वैल्यूज, एजुकेशनल वैल्यूज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सभी को एवेलुएट किया जाएगा। तो इसलिए मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट, सभी को असेस करके वो एक रिपोर्ट कार्ड, डिजिटल रिपोर्ट कार्ड बनेगा। उसमें डैशबोर्ड डिफरेंट रहेगा। सपोज आप एकेडमिक, तो आप डिजिटली, आपका अभी अपर आईडी क्रिएट हो गया बच्चों का, उसमें आप लॉगिन आईडी पासवर्ड रहेगा, और वो ओपन करके आप डैशबोर्ड में आपका एकेडमिक का परफॉर्मेंस क्या है, आपका को करिकुलर एक्टिविटीज, आपका लाइफ स्किल्स का परफॉर्मेंस क्या है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर क्या फीडबैक है, सब कुछ मिलेगा। कवर्स कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, कॉग्निटिव बेसिकली नॉलेज बेस है। सोशल जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगा, जैसे आपका टीम स्पिरिट होगा, कोलाबोरेशन होगा। ठीक है, और इमोशनल में कैसे हाउ टू मेजर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, आपको कैसे अदर्स का फीलिंग को आप रियलाइज करोगे। ठीक है, तो इमोशनल में आपका जो स्ट्रेस है कि बर्डन है, उसको कैसे आप मैनेज करोगे, वो इमोशनल स्किल में आ जाता है। जैसे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब इमोशनल में आ जाता है। फिजिकल ग्रोथ, कैसे आप सपोज स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहोगे, आप मेंटली फिजिकली फिट रहोगे। ठीक है, असेसमेंट रहेगा डिफरेंट, सेल्फ असेसमेंट रहेगा, पीयर असेसमेंट रहेगा, टीचर असेसमेंट रहेगा, और पेरेंट फीडबैक रहेगा। रिपोर्ट कार्ड में आप खुद को असेस करोगे, आपका फ्रेंड आपको असेस करेगा, टीचर आपको असेस करेगा, और आपका पेरेंट भी फीडबैक रहेगा। जैसे आपका प्रोजेक्ट्स के ऊपर, आपका बिहेवियर के ऊपर, आपका पार्टिसिपेशन के ऊपर। ठीक है, आपका को करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर, आपका एकेडमिक्स के ऊपर असेसमेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एवेल्युएशन, जैसे फोकसेस ऑन स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इंस्टेड ऑफ जस्ट मार्क्स। क्वालिटेटिव रिमार्क्स रहेगा रिपोर्ट कार्ड में, रूब्रिक्स रहेगा, एंड स्किल बेस्ड रेटिंग्स रादर देन ऑन न्यूमेरिकल। क्वालिटेटिव रिमार्क्स रहेगा। रूब्रिक्स मींस डिफरेंट हेड में आपको फीडबैक दिया जाएगा और रेटिंग दिया जाएगा। और नेक्स्ट वन एम्फासिस ऑन लाइफ स्किल्स के ऊपर आ गया, एंड वैल्यूज। तो लाइफ स्किल्स में जैसे असेस क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे लाइफ स्किल्स जो है वो लीडरशिप है, टीम स्पिरिट है, कोलाबोरेशन है, कोऑपरेशन है, ये सब लाइफ स्किल्स में आ जाता है। ठीक है, भाई लीडरशिप, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एथिकल वैल्यूज। इमोशनल इंटेलिजेंस, सपोज हम बोलेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, आप आपका खुद का स्ट्रेस को, जो चाइल्ड उसका स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेगा, उसका अग्रेशन को कैसे कंट्रोल करेगा, खुद को कैसे, वो सेल्फ डिसिप्लिन क्या है वो लर्न करेगा, खुद सेल्फ रियलाइज करेगा, उसका जो वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, वो उसको खुद रियलाइज करेगा और उसमें इंप्रूवमेंट लाएगा। ओके, सेल्फ अवेयरनेस, वो खुद को अवेयर करेगा कि ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक नहीं है। तो ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाता है। एथिकल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज क्या है, वो कैसे अदर्स को हेल्प करेगा, वो अदर्स का फीलिंग को एक्चुअली वो रियलाइज करेगा, एक्सटेंडिंग हेल्प टू अदर्स। ठीक है, और ये सब एथिकल वैल्यूज के ऊपर आ जाता है। ठीक है, और इंक्लूडिंग सिटीजनशिप, एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आ जाता है लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज में। और अभी कहा गया है कि डिजिटल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड रिपोर्ट कार्ड, डिजिटल रिपोर्ट कार्ड बनेगा। आर्टिफिशियल ड्राइवन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन मीन्स एक्चुअली आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा, एआई जो आप है वो आपका एकेडमिक्स, आपका को करिकुलर एक्टिविटीज, आपका लाइफ स्किल्स, आपको वो असेस करेगा। ठीक है, तो आप किस लेवल में हो अभी, वो आपको जो एआई आप है वो बता देगा। ठीक है, डिजिटल रिपोर्ट कार्ड बनेगा, कभी भी आप देख सकते हो, आपका पेरेंट्स देख सकते हैं, आपका टीचर्स देख सकता है। एनकरेजमेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमिक सब्जेक्ट्स रहेगा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, ये सब मिलकर रहेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। रियल वर्ल्ड स्किल्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल लिटरेसी एंड कोडिंग, इसके ऊपर आप नॉलेज एक्वायर करेंगे, तो चिल्ड्रेन एक्चुअली नॉलेज एक्वायर करेगा। प्रमोट्स रियल वर्ल्ड स्किल्स, चाइल्ड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, कि डिजिटल लिटरेसी के ऊपर, कि कोडिंग के ऊपर, इसके ऊपर लर्न करेगा, क्योंकि एक वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस है स्टैंडर्ड 6 से। ओके, ये सब चीज आ जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, फर्स्ट रहेगा एकेडमिक परफॉर्मेंस रहेगा, नेक्स्ट को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रहेगा, देन स्किल, देन लाइफ स्किल्स एंड सोशल इमोशनल लर्निंग के ऊपर रहेगा,
एकेडमिक्स में आपका जो बेसिकली सब्जेक्ट के ऊपर एवेलुएट किया जाएगा। को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर में आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा, डिबेट, स्पोर्ट्स, योगा, एनसीसी, अदर एक्टिविटीज को मेजर किया जाएगा। थर्ड में लाइफ स्किल्स एंड सोशल इमोशनल लर्निंग्स, जैसे लीडरशिप, एम्पैथी, टीम वर्क, रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सब लाइफ स्किल्स एंड सोशल इमोशनल लर्निंग्स में आ जाएगा। तो डिफरेंट पार्ट रहेगा रिपोर्ट कार्ड में, डिजिटल रिपोर्ट कार्ड में। वैल्यूज एंड एथिक्स रहेगा, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, रिफ्लेक्शन ऑन एथिकल डिसीजन मेकिंग इन डेली लाइफ, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग के ऊपर रहेगा, हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशन अवेयरनेस एंड इमोशनल वेलबींग, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन एंड माइंडफुलनेस एक्टिविटीज, असेसमेंट रहेगा, सेल्फ असेसमेंट रहेगा, जैसे आप खुद, द चाइल्ड खुद को असेस करेगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड लर्निंग गोल्स, पीयर फीडबैक रहेगा, टीचर इवैल्यूएशन रहेगा। ठीक है, इस तरीके से प्रोग्रेस रिपोर्ट को डिवाइड किया जाएगा, बाइफरकेट किया जाएगा। ओके, डिफरेंट एरिया में। ओके, आपको असेस, द चाइल्ड को असेस किया जाएगा। Impact of the 360-degree report card: reduce stress by focusing on overall growth instead of just marks, personalized learning paths for students, multi-dimensional talent development, parents and teachers track holistic development। ये सब पॉइंट्स को आप, स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाएगा, द चाइल्ड खुद को रियलाइज करेगा, ठीक है, उसका वीकनेस क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, और मल्टी डायमेंशनल टैलेंट रहेगा। आप देखिए, एकेडमिक्स, को करिकुलर एक्टिविटीज, लाइफ स्किल्स, एथिकल वैल्यूज, ठीक है, ये सब डिफरेंट एंगल में, पीयर असेसमेंट, टीचर असेसमेंट की पेरेंट असेसमेंट, ठीक है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट एक्चुअली पेरेंट्स एंड टीचर्स एक्चुअली वो चेक करेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। और बाकी इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर, जैसे एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWSN, differentiated learning strategies to cater to diverse learning abilities, schools must be barrier free and disability friendly, जैसे ब्रेली, साइन लैंग्वेज, असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड अल्टरनेटिव लर्निंग रिसोर्सेस रहेगा, स्पेशल एडुकेटर्स एंड काउंसलर्स टू सपोर्ट CWSN। तो इंक्लूसिव एजुकेशन एक्चुअली now disabled children, handicapped children, they do not separate actually from normal child, they sit in the same classroom। उनके लिए स्पेशल एडुकेटर्स अपॉइंटमेंट होगा, काउंसलर्स अपॉइंटमेंट होगा, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस रहेगा क्लासरूम में, ठीक है। और डिसेबिलिटी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहेगा, उनके लिए रैम्प्स रहेगा, टॉयलेट रहेगा, लिफ्ट रहेगा, ठीक है। और उनके लिए ब्रेली साइन लैंग्वेज की असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे डाइवर्स लर्निंग एबिलिटीज डिफरेंशिएटेड वेज में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा। उसमें गिफ्टेड स्टूडेंट से, उसी क्लास में स्लो लर्नर से, उसमें डिसेबल स्टूडेंट से, सब एक साथ बैठेंगे, मगर इंस्ट्रक्शन डिफरेंट रहेगा उनका लर्निंग डेवलपमेंट को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट फीचर्स था एनसीएफ के ऊपर। मैं 55 क्वेश्चंस डिस्कस किया और कुछ की फीचर्स को डिस्कस किया, तो मुझे लगता है बहुत वैल्यूएबल आपके लिए होगा। तो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, so that you can get notification for my upcoming videos. Okay, thank you and namaskar to all of you.